کے ساتھ خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کرتے ہیں. سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند کے کلام کی تعظیم کے لیے تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے، پھر ہم بیٹھ جائیں گے. ایک حوالہ پڑھیں گے ہم عبرانیوں سے، عبرانیوں 11واں باب، عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت. ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے. خداوند کا کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب بیٹھ سکتے ہیں. ایمان ہی کے سبب سے وہ خداوند کو پسند آیا اور وہ اٹھا لیا گیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ جب میں نے جو نیفلیم والا جو کلام ادھر سنایا تھا، یعنی جباروں کے اوپر، جو پیدائش کی کتاب 6 باب میں ہے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ہنوک کے بارے میں وضاحت سے کسی دن سیکھیں گے. تو آج ہم ہنوک کی راست بازی کے اوپر سیکھیں گے. ہمارا آج کا موضوع ہے ہنوک کی راست بازی، کہ وہ کیوں خدا کو پسندیدہ ہوا، کیوں خدا کو وہ پسند آیا، اس میں کیا کوالٹیز تھی کہ وہ خدا کو پسند آیا. عزیزو، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر بائبل مقدس کو، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل میں جو لفظ ہنوک ہے، ہنوک 19 بار استعمال ہوا ہے. 19 بار لفظ ہنوک استعمال ہوا ہے. اور جس ہنوک کے بارے میں آج ہم سیکھنے والے ہیں وہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے ہنوک جو تھے وہ بھی. اب دوسرے ہنوک کون تھے؟ سب سے پہلے تو قائن کا جو بیٹا تھا، پہلوٹا بیٹا، اس کا نام ہنوک تھا، لیکن وہ یہ والا ہنوک نہیں تھا. قائن کا جو پلوٹا بیٹا تھا وہ اس کا نام ہنوک تھا، لیکن وہ یہ والا ہنوک نہیں تھا جس کی بات آج ہم کرنے والے ہیں. جب ہم ابراہیم کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. بعد میں باقی بیٹوں کی بات کروں گا، پریشان نہ ہوئیے گا. تو اس کے بعد انہوں نے تیسری ایک شادی کی تھی. تو تیسری جب شادی کی تھی تو وہ بنی کتورہ کہلائے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا جو چوتھا بیٹا تھا اس کا نام تھا مدیان، اور مدیان کا آگے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے ہنوک رکھا. اور یہ والا ہنوک بھی وہ والا ہنوک نہیں تھا جس کی آج ہم بات کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں روبن کو. روبن جو تھا وہ پہلوٹا تھا، بڑا بیٹا تھا یعقوب کا. تو روبن کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ہنوک رکھا تھا، اور یہ حوالہ آپ گنتی کی کتاب کے 26ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں گھر جا کے. آج ہم جس ہنوک کی بات کرنے والے ہیں وہ یارد کا بیٹا تھا. جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو، تو پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس ہنوک کا ذکر آتا ہے جس کی آج ہم سٹڈی کرنے والے ہیں. جب ہم 23ویں آیت پڑھتے ہیں اور 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہنوک کا ذکر آتا ہے. تو یارد کا یہ بیٹا تھا. تو یارد کی عمر جب 162 برس ہو جاتی ہے تو اس سے ہنوک پیدا ہوتا ہے. تو ہنوک خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا. کلام مقدس میں ہمیں صرف 1 یا 2 آیاتیں ہنوک کے بارے میں ملتی ہیں اور ان کی عمر کے بارے میں ملتا ہے. باقی کوئی بھی تفصیل ہمیں کلام مقدس میں نہیں ملتی.
लेकिन जब हम रवायतों की किताबें पढ़ते हैं तो हमें हनूक के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मिलती है, और हमारा दिल भी चाहता है कि हम इस जलाली नबी के बारे में और ज़्यादा सीखें। यही वजह थी ये टॉपिक लेके आने की कि हनूक को हम पढ़ तो जाते हैं कि वो खुदा के साथ चलता चलता उठा लिया गया, लेकिन इसकी तफसील में नहीं जा सकते और ना ही हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश की और चाहा कि हम इसकी हनूक की रास्तबाजी के ऊपर सीखें। अजीजों, हनूक खुदा के साथ चलने वाला शख्स था, और आपको पता है पहला कत्ल जो था वो कायन ने किया था, ठीक है। तो कायन ने जब कत्ल किया था तो कायन खुद भी कत्ल ही हुआ था, ठीक है। लामक ने उसको कत्ल किया था जब उसकी बेनाई चली गई थी। लामक का बेटा उनको लेके जाता है शिकार के लिए, तो अपने बाप को कहता है कि हिरनी के ऊपर तीर चला, जब वो, ये रवायतों की किताबों में लिखा हुआ है। तो जब वो तीर चलाता है तो धुंधलेपन की वजह से वो तीर जो है वो कायन को जाके लगता है और कायन की हलाकत हो जाती है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ हनूक के बारे में ही आज हम सीखेंगे। अजीजों, जब आदम की वफात हुई तो आदम को दफन करने का, यानी उस वक़्त इंसान को दफन करने का तरीकाकार इजाद हो चुका था, यानी किस तरीके से इंसान को दफन करना है। तो आदम को जब दफन किया गया तो सीत, यानी जो तीसरा बेटा था आदम का, वो और हनूक का बेटा मतुसला, मतुशाले भी कहते हैं इनको, रवायत की किताबों में मतुसला भी लिखा है, और हनूक, ये तीनों मिलके इनको वो करते हैं, इनकी तदफीन करते हैं आदम की, ठीक है जी। तो आदम की तदफीन फिर एक गार में की जाती है और पूरे उस तरीके के साथ आदम की तदफीन की जाती है, और हनूक उनके साथ होता है ये काम करने के लिए। अजीजों, हनूक जो था वो खुदावंद की खिदमत करता रहता था। उस दौर के लोग जो थे वो खुदा से फिर गए थे, वो खुदा की हजूरी में रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हनूक ने लोगों को इकट्ठा किया, और हनूक ने लोगों को इकट्ठा किया और उनको खुदा की बातें बताईं, और हनूक खुदा की खिदमत में रहा करता था, खुदा के साथ चलता था। ये एक सोचने की बात है कि हनूक खुदा के साथ चलता था, और हमारी जिंदगियां किस जगह पर हैं, किस मकाम पे हैं? क्या हम खुदा के साथ चलते हैं? हनूक की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी खुदा के साथ चलना चाहिए। जो खुदा ने हमें राहें दिखाई हैं, जो सीधा रास्ता हमें खुदा ने दिखाया है, जो पैगाम खुदा के बंदों से हमें मिला है, हम भी उनकी राहों पर चलें। हमें भी चाहिए जिस तरह हनूक चला था। हनूक ने शरारत से नफरत रखी, हमें भी शरारत से नफरत रखनी चाहिए, शर को अपने अंदर से निकालना चाहिए। आज हम किसी को कोई अच्छी बात भी बताना चाहे ना सलाह के लिए, तो लोग समझते हैं ये शरारत कर रहा है, हालांकि वो शरारत नहीं होती, वो एक सलाह होती है, ठीक है। हम अपने अंदर से बदी को, गुनाह को निकालना नहीं चाहते। वो मजमे में बैठे हो ना, तो कोई आदमी जराबें उतार दे तो स्मेल आती है, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक वाकया है कि ये जो गांधी के साथ होते थे नेहरू जी, तो ये बड़ा एक मशहूर वाकया है। तो ये किसी कॉन्फ्रेंस में गए, तो इनका एक जो वो होता है ना सेक्रेटरी, वो इनके हर वक्त साथ ही रहता था। तो उसने जो जुराबें पहनी थी वो बहुत ही पुरानी और बदबूदार थी। तो उन्होंने बोला कि पैसे दिए उसको कि जाओ यार इसको ना चेंज करके आओ, वो स्मेल आ रही है। तो वो गया और चेंज करके आ गया, स्मेल दोबारा से उसके पास से आ रही थी। तो
उन्होंने बोला कि भाई तुमने नई जराबें नहीं पहनी? तो वो कहता है कि नहीं पहनी है। तो कहता है पुरानी? कहता वो मेरी जेब में है। तो हम इस गंदगी को, गुनाह की गंदगी को, बदबू को अपने अंदर से, अपने से दूर नहीं करना चाहते। हम नई बातें भी सीखते हैं लेकिन पुरानी भी नहीं बोलते। तो जो हनूक था वो खुदा के साथ वफादार था, खुदा के साथ साथ चलता था। हनूक का ज्यादातर जो मेल मिलाप होता था वो खुदा के साथ रहता था। वो कई कई महीने खुदा की हजूरी में रहता था। वो कहते ना ये बड़ा तपस्वी है। वो तपस्या करने के लिए, खुदा की हजूरी में रहने, इबादत के लिए खुदा की हजूरी में चले जाते थे और कई कई महीने गायब रहते थे और लोग उनको ढूंढते थे। तो फिर उनको बताते थे कि भाई हमारे साथ भी कोई मेल मिलाप रखिए। तो हनूक जो थे वो उस दौर के अपनी रियाया के बादशाह भी थे। लोग उनकी बादशाही को कबूल करते थे, उसकी उनकी बातों को माना करते थे। वो जो तालीम और तरबियत अपने लोगों को देते थे, उनको उनके लोग जो थे वो दिलो जान से कबूल करते थे। तो जब वो अचानक कई कई महीने उनके दरमियान से हनूक गायब हो जाते थे और तपस्या यानी इबादत के लिए वो चले जाते थे, मैं अनाक की बात नहीं कर रहा, मैं हनूक की बात कर रहा हूँ। हमारे दरमियान भाई अनाक भी बैठे हुए हैं, इनाक ठीक है, एन से। तो एक अनाक भी था, ठीक है, जिनको बनी अनाक भी कहते हैं, जो बड़े जबार किस्म के लोग थे, ठीक है। तो मैं अनूक की बात कर रहा हूँ, इनाक की नहीं। ये बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, वो कई कई महीने तपस्या के लिए चले जाते थे। तो फिर एक दिन खुदा का फरिश्ता, रवायतों में लिखा हुआ है तालमुद की किताब में, कि एक फरिश्ता उनके पास आता है और उनको आवाज देता है हनूक को कि हनूक हनूक। तो फिर हनूक उनका जवाब देता है। तो फरिश्ता उनको कहता है कि तू अपने लोगों में जा, उनको खुदा की बादशाही की बातें सुना ताकि वो सीधी राह की तरफ आए। तो फिर हनूक जो है वो महीनों की तपस्या को छोड़कर लोगों के बीच में आता है और लोग उसको अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो जब वो आदम को दफन करता है, तो आदम को दफन करने के बाद वो दोबारा से तपस्या में चला जाता है, इबादत के लिए चला जाता है। लेकिन वो उस दौरान क्या करता है कि वो 3 दिन के लिए इबादत में रहता है और 3 दिन के बाद चौथे दिन रियाया के पास आता है। यानी 3 दिन इबादत खुदा के साथ और 1 दिन अवाम के साथ रहता था। फिर इस अरसे को हनूक ने बढ़ा दिया और 6 दिन खुदा की हजूरी में हनूक ने रहना शुरू कर दिया। ये रवायत की किताबों में लिखा हुआ है, हवाले भी दे सकता हूँ। तो 6 दिन खुदा की हजूरी में रहता था और 6 दिन के बाद जब हनूक रियाया के सामने आता था तो खुदा का जलाल उसके चेहरे से टपकता था। उसकी चमक को लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसके चेहरे की इतना जलाली चेहरा हनूक का हो जाता था। और जब वो लोगों के बीच में आता तो लोगों को इकट्ठा करता था, लोगों को इकट्ठा करता था कि खुदा की तरफ आए, खुदा के हुक्मों को माने और खुदा की सीधी राह लोगों को बताया करता था हनूक। और यह भी बताया करता था कि खुदा की इस राह के ऊपर चलना कैसे है, वो सारा तरीका भी उनको बताया करता था। उसकी रास्तबाजी को किस तरीके से तलाश करना है, खुदा की रास्तबाजी को, ये लोगों को बताया करता था और खुदा के हुक्म लोगों को बताया करता था। और हनूक की जो रियाया थी वो उसके ऊपर अमल किया करती थी। वो ऐसा दौर था कि उस दौर में बदी आम थी, लेकिन हनूक लोगों को खुदा के पास फिर भी ले आया। हालेलुया। आप भी हनूक की तरह ये सारा अमल कर सकते हैं। अगर लोग बुरे हैं तो नो प्रॉब्लम, हम अच्छे होकर लोगों को खुदा के करीब ला सकते हैं हनूक की तरह।
हनूक चाहता था कि जमीन के ऊपर अमन कायम हो, क्योंकि उस वक्त जवार भी थे, सूरमा थे बड़े बड़े। तो हनूक चाहता था कि जमीन के ऊपर अमन कायम हो और लोग खुदा की बातों को माने और उसके हुक्मों पर अमल करें। हनूक जो था एक दानिश्वर आदमी था और शहजादे और हुक्मरान उसकी बातों को सुनने के लिए उसके पास आया करते थे। अजीजो, हनूक ने 353 साल, ये हम रवायत की किताब से ये अखज़ करते हैं, तालमुद की किताब में लिखा है कि 353 साल तक लोगों पर हुकूमत की। और इनका जो बेटा था मतुसला, जब हनूक गायब हो गए तो उसके बाद मतुसला को नबूवत दी गई। और जब तूफान नूह आया तो उस वक्त मतुसला जिंदा थे, ठीक है जी, और उनको भी इस चीज़ की खबर थी कि किस तरीके से दुनिया तबाह होगी, लेकिन वो एक अलग बात है। तो 353 साल तक उन्होंने हुकूमत की और रास्तबाजी और इंसाफ की वजह से ज़मीन पर उन्होंने अमन कायम किया, क्योंकि उस दौर में बदअमनी बहुत थी, लोगों में डर था, लोग खुदा के करीब आना नहीं चाहते थे, लोगों ने अपना ही एक निज़ाम बनाया हुआ था। लेकिन फिर भी हनूक उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे ले आता है और अमन कायम करता है। अजीजो, हनूक जो था, आज का टॉपिक कुछ ज्यादा लंबा नहीं होएगा, ठीक है, थोड़ा सा महदूद ही होएगा, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हनूक इतना मुकद्दस हो गया था, इतना ज्यादा मुकद्दस हो गया था कि उसके ऊपर जो खुदा का जलाल होता था, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब वो छठे दिन के बाद लोगों के बीच में आता था, लोग खौफजदा हो जाया करते थे, खौफजदा हो जाया करते थे उससे, यानी इतना वो जलाली उसका चेहरा और उनकी हैयत हो जाती थी। किसी को भी उसका सामना करने की जरूरत नहीं होती थी कि उसके आगे बोल सके। वो जो बात कहता था लोगों को आमीन करना पड़ती थी, क्योंकि वो हक बात करता था, खुदा की बात करता था, और आसमान का जलाल उनके चेहरे पर ठहरा रहता था। जब वो बोला करता था तो उनकी आवाज इतनी बुलंद होती थी कि लोग जहां जहां भी उनको आवाज आती थी, लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। ये है खुदा की कुदरत जो उनमें नजर आया करती थी, और लोग इकट्ठे हो जाया करते थे और उनसे इल्म सीखा करते थे। और वो बुलंद आवाज से लोग पुकारा करते थे कि हमारा बादशाह सलामत रहे, हमारा बादशाह जिंदाबाद, या हमारा बादशाह सलामत रहे। अजीजों, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हनूक सफर पर निकल पड़ता है और वो अपने घोड़े पर सवार होता है, और जितने भी उनके मानने वाले हैं, उनकी रियाया, वो भी उनके साथ ही सफर पर चल पड़ती है हनूक की। लेकिन हनूक अपने लोगों को मना करता है कि जिस जगह पर मैं जाने वाला हूं वहां पर तुम लोग नहीं जा सकते। लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि वो लोगों को अच्छी बातें बताता था, खुदा की बादशाही की बातें सुनाता था, तो लोग उसके पीछे। फिर 2 दिन के बाद जब सफर गुजरता है तो वो लोगों को मना करता है कि तुम लोग मर जाओगे। फिर उनमें से कुछ लोग जो हैं वो वापस चले जाते हैं, और कुछ अभी भी उनके साथ, हनूक के साथ सफर जारी रखते हैं। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो हवाला जो पैदाइश की किताब में लिखा है वो पूरा होता है, जो कि 5वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, और वहां पर लिखा हुआ है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और ये वो वक्त था जब खुदा उसको उठा लेता है। जब हम रवायत की किताब पढ़ते हैं तो रवायतों की किताब में लिखा हुआ है कि उनके लिए एक आतिशी रथ आता है, उनके लिए एक आतिशी रथ आता है, और उसके ऊपर सवार होके वो चले जाते हैं। जब हनूक गायब हो जाता है, आसमान पर उठा लिया जाता है, तो लोग हनूक की तलाश में निकल पड़ते हैं कि हनूक को हम तलाश करते हैं, हमारा बादशाह किधर गया।
तो जो लोग अभी तक हनूक के साथ थे वो सभी के सभी की डेथ हो जाती है, और वो बर्फ वाला इलाका होता है, और बर्फ के इलाके में बर्फ के बीच में से उनकी लाशें उनको मिलती हैं, लेकिन हनूक उनको नहीं मिलता, हनूक उनको नहीं मिलता। ये बात है कि जो लोग खुदा के साथ साथ चलते हैं खुदा उनको संभालता है। आमीन। खुदा उनके साथ रहता है और उनकी जिंदगी से खुदा का जलाल नजर आता है। अजीजों, जब हम हनूक के बारे में मजीद पढ़ते हैं तो इनका एक सहीफा भी है, और आज का जो हवाला हमने पढ़ा है वो उस सहीफे की गवाही दे रहा है। पैगंबर मसीह यसू का जो शागिर्द है वो उस सहीफे की गवाही दे रहा है जो इब्रानियों से हमने हवाला पढ़ा है, क्योंकि जो मसीह यसू के शागिर्द थे वो बुक ऑफ एनोक को पढ़ा करते थे। बुक ऑफ एनोक जो है वो इंग्लिश ज़बान में है, एक किताब है, और इसके 108 चैप्टर हैं। इसका उर्दू में तर्जमा पाकिस्तान में मैंने किया है, आप इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं उर्दू के तर्जमे को, ठीक है जी। और ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, और इस किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोनॉमी का इल्म है, इल्म फल्कियात का, वो इसी किताब को पढ़ के ईजाद हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इस किताब में बताया जाता है बुक ऑफ एनोक में कि आसमान के सितारों के ऊपर भी फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है। और जो हमारा जदीद कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है जी, ये और जो हनूक की किताब में कैलेंडर बयान किया गया है वो सभी सेम है, वो सेम ही है, क्योंकि उसमें भी 365 दिनों का जिक्र है हनूक के कैलेंडर में, और जो हमारा जो कैलेंडर है इसमें भी 364-65 दिनों का जिक्र है। और एक महीना कैसे पूरा होता है, कहां से सूरज निकलता है और गरूब होता है, ये सारे का सारा मामला जो है वो हनूक की किताब में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि एस्ट्रोनॉमी का इल्म जो है वो बुक ऑफ एनोक को पढ़ के इसकी तरफ लोग बढ़े। तो इस किताब में जो बुक ऑफ एनोक है, जो पैदाइश की किताब में 6ठे बाब में जो वाकया है कि खुदा के फरिश्ते आते हैं और इंसान की बेटियों के साथ वो शादी करते हैं और उनसे एक मखलूत नस्ल पैदा होती है जो जुबार कहलाते हैं, जो सूरमा कहलाए, ठीक है जी। और यही सूरमा थे, फिर इन्होंने फिर इंसानों को तंग किया और खुदा मलूल हुआ और खुदा ने इंसान को खत्म करने का इरादा कर लिया। हनूक वो शख्स था जो उन्हीं में से लोगों को खुदा के करीब लेके आया था, लेकिन जब हनूक गायब हो जाता है तो जमीन पर बदी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इनका बेटा मतुसला वो उनसे फिर खुदा कलाम करता है और नूह से, दोनों से कलाम करता है, और फिर वो वक्त आता है कि पूरी दुनिया से इंसानियत को खत्म कर दिया जाता है सवाए नूह और उसके खानदान के, ठीक है जी। तो ये चीज थी कि हनूक जो है, हनूक की किताब में भी ये वाकया दर्ज है, ये नूह वाला जो वाकया है हनूक की किताब में भी दर्ज है और आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो इस किताब में है बुक ऑफ एनोक में, वो ये है कि इस किताब में मसीह यसू की भी गवाही दी गई है, यानी हजारों साल पहले लिखी गई इस किताब में बुक ऑफ एनोक, जो कि गालबन आदम के बाद दूसरे नबी समझे जाते हैं, ठीक है, हालांकि ये 7वीं पुश्त में थे आदम से। तो ये जो है मसीह यसू की गवाही दे रहे हैं कि वो अपने हजारों फरिश्तों के साथ आएगा। जब हम पढ़िए एक हवाला और ये हवाला मैं इसलिए पढ़ने को कह रहा हूं कि मसीह यसू के शागिर्द बुक ऑफ एनोक पढ़ा करते थे, और यहूदा के खत में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया हुआ है। यहूदा 14वीं आयत पहला बाब 14वीं आयत। इसके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था,
یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا. اور یہ حوالہ سیم ایسے ہی بک آف انوک میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ شاگرد اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے، یہ ایک اتھینٹک کتاب ہے. بہت سارے لوگ اس کو اپوکرافا کی لسٹ میں ڈالتے ہیں، جو کہ ایک بشپ تھا، بشپ جیروم. تو انہوں نے جب کتابوں کے لسٹ میں یہ گوسپل آف مریم اور اس طرح کی بہت سارے اور کتابیں تھیں، برناباس تو نہیں تھی، اور بھی بہت ساری تھی، تو ان کتابوں کی لسٹ میں سے یہ جو ہماری یہ جو مجموعہ ہے اس کو الگ کیا تھا اور ان کتابوں کو پھر اپوکرافا میں ڈال دیا تھا انہوں نے. تو ان میں پھر بک آف انوک بھی شامل تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بک آف انوک کو خداوند کے شاگرد جو تھے مسیح یسوع کے پڑھا کرتے تھے، اور مسیح یسوع کی گواہی اس کتاب میں دی گئی ہے. اور یہ دی گئی ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی، جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا. اور یہ گواہی، یہ جو پیشن گوئی تھی، یہ مسیح یسوع کے بارے میں تھی. ٹھیک ہے. ہزاروں سال پہلے انہوں نے یہ پیشن گوئی کی. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہنوک تو اپنے لوگوں میں سے غائب ہو گیا اور خدا کے ساتھ چلتا چلتا غائب ہو گیا اور آخری رات ان کے لیے آیا. لیکن مسیح یسوع نے جو خوشخبری اپنے لوگوں کو دی، اپنے شاگردوں کو جو دی، وہ خوشخبری رکی نہیں. ہنوک کی خوشخبری اس وقت رک گئی تھی، طوفان نوح آ گیا. لیکن مسیح یسوع کی خوشخبری ہے، خوشخبری کی باتیں ہیں، جو کلام ہے وہ رکا نہیں، وہ پھیلتا گیا. اور آج ہم اس کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں. اتنے سارے مسیحی دیکھیں ابھی بھی ادھر جمع ہیں اور اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو مذہب ہے، مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ مسیحی ہیں. اور یہ مسیح یسوع کی بدولت ہے. صرف 3.5 سال کی اس جستجو میں، منادی میں، پوری دنیا جو ہے وہ مسیح یسوع کا نام لیتی ہے. ہر جگہ پر مسیح یسوع کا نام لیا جاتا ہے. ہنوک بھی لوگوں کو خدا کے پاس لے کے آیا، لیکن مسیح یسوع بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گے، ہنوک بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گے. لیکن دونوں میں جو متفرق بات ہے جو یہ ہے کہ مسیح یسوع کے چاہنے والے ابھی بھی خدا کی راہ پر چل رہے ہیں. ہاللیلویہ. ہنوک نے اچھی باتیں بتائیں. ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور لوگوں کو خدا کے پلیٹ فارم پر لے کے آیا. لیکن مسیح یسوع نے جو پلیٹ فارم لوگوں کو دیا، اس پلیٹ فارم کے اوپر آج تک لوگ قائم ہیں. کچھ لوگ منحرف بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر قائم ہیں. اور جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعمال کی کتاب سب مسیحیوں کو پڑھنی چاہیے، کہ کس طریقے سے شاگردوں نے اس دین کو آگے پھیلایا. اور ایک میں نے ویڈیو کا لنک جو تھا پولس رسول کا، وہ ضرور آپ دیکھیے گا زندگی میں. ٹھیک ہے جی. تو پولس رسول نے پھر اس طرح پھر دکھایا کہ کمال کر دیا، اور دوسرے شاگردوں نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا. بلکہ ان کے کپڑے جو تھے وہ بیمار اشخاص کے ساتھ ٹچ کیے جاتے تھے تو لوگ شفا پا جاتے تھے. ایسا کام. تو یہ مسیح یسوع کی بدولت ہی ہوا، جس کی گواہی کون دے رہا تھا؟ ہنوک. مسیح یسوع کی گواہی کون دے رہا تھا؟ ہنوک. اور یہ ایک پیشن گوئی تھی. اس پیشن گوئی کو آج تک لوگ ظاہر نہیں کرتے کہ ہنوک نے بھی پیشن گوئی کی تھی. باقی ساری پیشن گوئیاں بتاتے ہیں، لیکن ہنوک نے جو پیشن گوئی کی وہ سچ ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں بالکل ایسے لکھا ہوا ہے، اور یہودا کی کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے. ہاللیلویہ. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے. آمین.